In this video, we are going to discuss question answers and worksheet of lesson The Chair. Let us think and reflect. Read the following lines and answer the questions that follow. Take it, it's a very special chair as it is invisible. It's rather tricky to sit on. But if you take it to school and manage to sit on it, then the magic will work and you'll be able to tell who your real friends are. तो मारियो के दादाजी ने उसे बता दिया कि भाई चेयर स्पेशल है, इनविजिबल है, बैठना जरा मुश्किल है, लेकिन अगर स्कूल ले गए और इस पे किसी तरह बैठ पाए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन है. Fill in the blanks with two words that describe the chair. चेयर को डिस्क्राइब करने के लिए दादाजी ने जो वर्ड्स यूज किए हैं उन्हें यूज करना है. एंड these words are special and invisible. Why was it tricky to sit on the chair? चेयर पे बैठना ट्रिकी क्यों था? जरा बताइए क्यों ट्रिकी था? Because it was invisible and Mario could not see where he should sit. क्योंकि चेयर इनविजिबल थी और मारियो को समझ नहीं आ रहा था बैठना किधर है. Why does Mario's grandfather call the chair special? मारियो के ग्रैंडफादर चेयर को स्पेशल क्यों कह रहे हैं? Mario's grandfather calls the chair special because it could reveal who Mario's real friends or true friends are if he manages to sit on it. क्योंकि अगर वो उस पर किसी तरह बैठ पाता है तो वो बता पाएगा कि उसके सच्चे दोस्त कौन हैं. Wait, just a slight technical problem, he said, trying again, but again he missed the seat, causing more surprised looks and laughter. Mario wouldn't give up. अब कहते हैं रुको थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है. फिर से कोशिश करता है, फिर गिर जाता है और इस तरह से सब लोग खूब हंसते हैं, उस पर मजाक उड़ाते हैं. तो मारियो क्यों नहीं हिम्मत हार रहा है? Fill in the blanks with a suitable reason. Mario says there was a technical problem because. क्यों कहना पड़ रहा है उसको टेक्निकल प्रॉब्लम है? Because he missed the seat. क्योंकि जिस जगह उसे बैठना था, चेयर पे बैठना था, उस पे बैठ ही नहीं पाया, नीचे गिर गया, इसलिए वो बोल रहा है. Mario's friends were very caring and helpful. State whether true or false. अब ये लाइन Mario's friends were caring and helpful ठीक है या नहीं है? तो it is false. मारियो की सोच थी कि उसके पास बहुत सारे फ्रेंड हैं, जबकि 3 ही ऐसे बच्चे थे जिन्होंने उसकी गिरने से बचाने में कोशिश की. तो this statement, his friends were very caring and helpful, is false. Choose the correct option to complete the sentence. Mario wouldn't give up. This shows he is. Mario हिम्मत नहीं आ रहा था, इससे क्या पता चलता है? That he is strong-willed. कि उसकी विल पावर बहुत अच्छी है, वो जो चाहता है वही करता है. Answer the following questions. What was the bet about? शर्त किस बात को लेकर लगी थी? The bet was that Mario did not have as many friends as he thought. शर्त इस बात को लेकर थी कि मारियो के उतने सारे दोस्त नहीं हैं जितना वो सोचता था. What happened when Mario sat on the chair for the first time? पहली बार जब मारियो चेयर पर बैठने लगा तो क्या हुआ? When Mario sat on the chair for the first time, he missed and fell. वो नहीं बैठ पाया, नीचे गिर गया and causing laughter among his classmates. और उसके दोस्तों के बीच में उसकी खूब हंसी उड़ाई गई. How was Mario able to find his real friends? कैसे वो अपने रियल फ्रेंड्स को ढूंढ पाया? Mario was able to find his real friends when he finally managed to sit on the invisible chair with the help of his true friends, Gunit, Asma and Deepa, who supported him to prevent him from falling. वो अपने दोस्तों को ऐसे मिल पाया कि लास्ट में जब गुनीत, आसमा और दीपा ने उसे गिरने से बचा लिया तो समझ आ गया कि यही मेरे सच्चे दोस्त हैं. Do you think the magic chair test was good? Why do you say so? क्या आपको लगता है मैजिक चेयर टेस्ट अच्छा था? क्या लगता है आपको? Answer. Yes, the magic chair test was good because it helped Mario distinguish between his real friends who supported him and others who laughed at his attempts. इसलिए ये टेस्ट अच्छा था क्योंकि उसे पता लग सका कि उसके सच्चे दोस्त कौन हैं और दूसरे कौन हैं जो उस पर हंसते हैं. What does friends for life mean to you? Friends for life का क्या मतलब है आपके हिसाब से? क्या मतलब होता है friends for life? Friends for life means having friends who are always there for you
and who support and care for you unconditionally. Friends for life वो दोस्त होते हैं जो जिंदगी भर आपका साथ निभाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी परवाह करते हैं और कोई कंडीशन नहीं लगाते। कोई कंडीशन लगाए कि भैया ये देगा तो मैं तेरे दोस्त बनूंगा, कल मेरे लिए टिफिन में तू अपनी मम्मी से खाना बनवा के लाएगा तो मैं तेरा दोस्त बनूंगा। तो ऐसी कंडीशन या कोई भी कंडीशन अगर कोई लगा रहा है वो तो सच्चा दोस्त हो ही नहीं सकता। तो दोस्त वही होंगे जो अनकंडीशनल लव करेंगे। द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प Mario find his real friends. Mention any other way that would help you find out who are your real friends. तो और कौन सा तरीका हो सकता है ये पता लगाने का कि आपके दोस्त कौन हैं। तो another way to find out who your real friends are could be to observe who stands by you during difficult times. ये ऑब्जर्व करना कि कौन आपके साथ मुश्किल समय में भी खड़ा रहता है, एंड हु रियली केयर्स अबाउट योर वेलबींग एंड हैप्पीनेस, और कौन तुम्हारी वेलबींग की, तुम्हारे ठीक होने की, तुम्हारी खुशियों की परवाह करता है। तो चेयर टेस्ट तो अब सबको पता लग गया, इसलिए अब आप ये टेस्ट अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट अस लर्न। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, कैरिंग, कॉल्ड, शोड। Complete the following table by dividing the words into two parts. One has been done for you. Word और suffix इन दोनों में हमें divide करना है. The word in column A are called the root words, and the sequences of letters that are in column B which come after the root words are called suffixes. तो ये जो गिवन वर्ड्स हैं इनमें जो मेन वर्ड है उसे हम रूट वर्ड कहेंगे, और जो पीछे जो लेटर्स लगे हुए हैं उस वर्ड के मीनिंग को बदल रहे हैं उन्हें हम सफिक्स कहते हैं. सो लेट अस डिवाइड देम. फर्स्ट इज फ्रेंडली, एंड फ्रेंड इज द रूट वर्ड whereas ly इज द सफिक्स. सडनली में सडन रूट वर्ड होगा, टॉकिंग में टॉक रूट वर्ड हो गया, कैरिंग में कैरी, और कॉल्ड में कॉल, और शोड में शो रूट वर्ड है. तो ये रूट वर्ड्स हैं और इनके साथ हमने ये वाले सफिक्सेस लगाए हुए हैं, ly, ing, ing, ed, ये सफिक्स लगे हैं इनमें, और ये सफिक्स किसी भी रूट वर्ड में ऐड करके उनके मीनिंग को बदल देते हैं. मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विद सुटेबल सफिक्स. वर्ड्स, ये रूट वर्ड्स दिए गए हैं हमें, और इन रूट वर्ड्स को हमें इन वाले सफिक्सेस के साथ मैच करना है कि कौन सा सफिक्स किस रूट वर्ड के साथ जाएगा. सभी सफिक्स सभी रूट वर्ड्स के साथ नहीं जाते हैं, तो जो जिसके साथ जाता है उसके साथ मैच करना है. और वी हैव टू मेक अ न्यू वर्ड. जैसे ये मैजिक के साथ ing नहीं लगेगा भाई, al लगेगा तो मैजिकल बन जाएगा. और द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट, ये हमने सेंटेंस बनाया है इसमें से. नाउ केयर को हम FUL लगा के केयरफुल बना देंगे, और केयरफुल का बनेगा सेंटेंस, वी शुड बी केयरफुल व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. फिर सेलिब्रेट का बन सकता है सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन का बनेगा इंडियाज विक्ट्री कॉल्ड फॉर अ सेलिब्रेशन. नए सेलिब्रेशन की जरूरत है, जब इंडिया जीता है तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना. दिस इज बीइंग सेड. laughed, so he laughed at my jokes. मैं मजाक कर रहा था, वो हंस रहा था. wondered, he wondered about nature's beauty. भाई प्रकृति के बारे में तो सभी सोचते हैं. helpful और helpful, she is very helpful, my friend is very helpful. friendly, and I am very friendly with everyone. मारियो ने कहा था ना. and courageous, so she is a courageous woman. Now read the following lines from the story. Mario, brave and determined, took the strange invisible chair. You have already described the chair. Now describe what kind of a person Mario is in the image given below. चेयर को हमने डिस्क्राइब किया था, और उस चेयर के हमने कुछ क्वालिटीज बताई थी. क्या बताया था कि चेयर कैसी थी? इनविजिबल एंड स्पेशल. तो अब मारियो की क्वालिटीज बताते हैं. मारियो कैसा है? ब्रेव, डिटरमिन्ड, और क्या है? क्लेवर और फ्रेंडली. तो ये मारियो की क्वालिटीज हो गई. द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग आर कॉल्ड
एडजेक्टिव्स। तो ये एडजेक्टिव्स हैं एक्चुअली। ये ब्रेव, डिटर्मिन्ड, क्लेवर, फ्रेंडली और जो चेयर के लिए हमने लगाए थे स्पेशल और इनविजिबल, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स को हम क्वालिफाइंग वर्ड्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमें क्वालिटी बता रहे होते हैं किसी की। मैच ईच वर्ड इन कॉलम ए विद ए सुटेबल वर्ड इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ वर्ड दिए गए हैं जो कि एडजेक्टिव्स हैं और कॉलम बी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि नाउन्स हैं, और कॉलम सी में हमें वो फ्रेज बनाना है इन दोनों को जोड़ करके। एंड कॉलम डी में वी हैव टू मेक सेंटेंसेस। तो एडजेक्टिव्स जो हैं, क्योंकि बताया कि नाउन की क्वालिटी बताते हैं तो किसी ना किसी नाउन के साथ लगे हुए होंगे। तो यहाँ पर ब्रेव जो है ये फ्रेंड्स के साथ हो सकता है मैच, लेकिन सोल्जर वर्ड के साथ ज्यादा मैच होता है क्योंकि फ्रेंड्स के साथ तो कुछ और भी मैच हो सकता है। तो ब्रेव सोल्जर, द ब्रेव सोल्जर मार्च्ड अहेड। देन क्लेवर, क्लेवर फ्रेंड्स के साथ तो नहीं हो सकता, फ्रेंड्स भला क्लेवर होते हैं। प्लान, क्लेवर प्लान, द क्लेवर प्लान सेव्ड द डे। भाई चालाकी से बनाए हुए प्लान ने दिन को बचा लिया। टेस्टी, अब टेस्टी क्या हो सकता है? टेस्टी तो पीनट्स हो सकते हैं, तो टेस्टी पीनट्स वर ए हिट एट द पार्टी। पार्टी में हिट थे, मतलब क्या है, सबको बड़े पसंद आ रहे थे। हैवी मैचेस विद रेन, हैवी रेन। सो द हैवी रेन कॉज्ड फ्लडिंग, तेज बारिश से बाढ़ आ गई। स्लाइट, स्लाइट कैन मैच विद कोल्ड, स्लाइट कोल्ड। द स्लाइट कोल्ड मेड हिम फील अनकंफर्टेबल। अब भाई कोल्ड होता है तो सभी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उसे भी हो गया। देन ट्रू मैचेस विद फ्रेंड, दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ट्रू फ्रेंड्स। सो ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज सपोर्ट अस, चिप दोस्त हमेशा हमारी मदद करते। कंप्लीट द पैराग्राफ विद सुटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग। अब एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग करके हमें इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। Once upon a time in a little village, a happy boy named Abhishek found an old book in the attic. He read amazing stories. अब ये read पढ़ेंगे, read पढ़ेंगे, इसको read पढ़ेंगे बेटा। past tense में story बताई जा रही है तो past tense में read पढ़ते हैं इसको, present में read पढ़ते हैं। Amazing stories about fairylands, colorful creatures and old castles. Abhishek's eyes got big as he imagined these magical adventures. He told his friends about the stories and they started to have their own fantastic adventures when they played together. So in this way, this video comes to an end. I hope you learned something and keep learning, keep growing. Thank you. Bye-bye.